میں جس اسپتال میں نرس تھی وہاں ایک 80 سال عورت روز کم عمر لڑکیوں کو لے آتی۔ وہ سب لڑکیاں اپنا ابورشن کروانے آتی تھی۔ میں حیران ہوتی عورت روزانہ کم عمر لڑکیوں کو کہاں سے لے آتی ہے۔ اچانک کچھ دنوں بعد میری چھوٹی بہن کی طبیعت خراب ہوگی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی کہ اس سے نادانی میں گناہ ہو گیا ہے۔ میں ابورشن کروانے کے لیے اسے اسپتال لے آئی اور اسی عورت سے کہا کہ میری بہن کا بھی ابورشن کروا دے تاکہ اسپتال والوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ میری بہن ہے۔ میری بہن آپریشن تھیٹر سے آئی تو رو رہی تھی اور اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اسے گھر لے آئی تو میری بہن مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور روتے ہوئے بولی کہ میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے۔ پھر اس نے اپنی قمیض ہٹائی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا نام کومل ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ مجھے نرس کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ اب میری نوکری کی وجہ سے میرے گھر کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ ہسپتال میں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ہماری کوئی سینئر نرس بہت اچھی تھی اور ہمیں کام کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، مگر کچھ بڑی نرس ایسی تھی جو ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی اور ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح کی شفٹ والی نرس نے ڈسچارج بنانا تھا مگر وہ بغیر بنائے چلی گئی۔ جب میں اور روبی اپنی دوسری شفٹ پر گئے تو انچارج ہمیں ڈانٹنے لگی۔ پھر ایک نرس نے آ کر اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ کہنے لگی، تم اسے بٹھاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ نہ جانے کون آیا تھا مگر نرس فوزیہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اور روبی نے شکر ادا کیا۔ نرس فوزیہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی سوائے وارڈ والے انکل کے۔ وہ نرس فوزیہ کی عمر کے ہی تھے اور ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ایک دن میں اور روبی دوسرے وارڈ میں جا رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی جو بہت ہی کم عمر کے لگ رہے تھے ہمارے پاس آ کر نرس فوزیہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں صرف نرس فوزیہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ آیا لڑکا اسے کہنے لگا کہ چلو ہم آگے چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا حلیے سے اچھے کھاتے پیتے گھر کا اور وہ لڑکی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ لڑکی گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ روبی ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ نرس فوزیہ میٹرنٹی وارڈ میں ہوتی ہے اور یہ اسی طرف جا رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ یہ بچہ ضائع کروانے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے منہ کھول لیا۔ وہ لڑکی 17 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نرس فوزیہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گی، وہ تو بڑی سخت ہیں، دھکے دے کر انہیں نکالیں گی۔ مگر روبی ہنستے ہوئے بولی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے 3 سال کہاں گزارے ہیں جو تمہیں اندر کی باتیں بھی نہیں معلوم۔ میں نے چونک کر پوچھا کہ کیسی اندر کی باتیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہی کہ وہ بچے بھی ضائع کرتی ہیں جو کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں۔ نرس فوزیہ اور کوئی دوسری نرسیں ان لڑکیوں کا ابورشن کر دیتی ہیں اور بدلے میں انہیں ڈھیروں سارا پیسہ ملتا ہے۔ یہ سب جاننا تھا کہ میرے لیے ایک انکشاف ہی تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھی۔ میری صرف روبی سے ہی گہری دوستی تھی۔ میں نے نرس فوزیہ کے بارے میں سن کر پوچھا کہ اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی اور لوگوں کو معلوم ہوگا، تو کوئی بھی ان کے خلاف شکایت درج کیوں نہیں کرواتا؟ روبی کہنے لگی کہ یہ سرکاری اسپتال ہے، یہاں شکایت لگانے والا خود ہی پھنس جائے گا اور نوکری سے بھی جائے گا، کیونکہ نرس فوزیہ کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ میرے ذہن میں سارا دن وہ باتیں گونجتی رہیں اور پھر وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ وہ کتنی کم عمر تھی اور ابھی سے ان چکروں میں پڑ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ اسی لیے تو بچہ ضائع کروانے آئی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسی لڑکیوں کو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے جو ماں باپ کی عزت قدموں تلے رون دیتی ہیں۔ میں نے اگلے دن روبی کو کہا کہ نرس فوزیہ جیسے لوگوں کی وجہ سے ایسی لڑکیوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ ابورشن جیسا غیر قانونی کام کوئی نرس نہیں کرے گی تو وہ غلط کاموں میں پڑنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گی۔ ہمیں نرس فوزیہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ روبی کہنے لگی کہ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ غلط ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی مگر بھی غور نہیں کیا تھا اور اب کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر دنگ بھی رہ گئی تھی کہ ہفتے میں 2-3 ایسے کیس لازمی آتے تھے۔ لیکن ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت آتی تھی۔ وہی عورت ہر بار مختلف لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ اسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کمیشن لے کر ایسی لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ میں یہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ روبی مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ کچھ دنوں بعد میں چھٹیاں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 18 سال کی تھی اور کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میں گھر گئی تو مجھے اپنی بہن کا رویہ دیکھ کر عجیب لگا۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کالج سے دیر سے آتی ہے اور اماں کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹیوں پر نظر رکھے، مینا کیوں کالج سے دیر سے آ رہی ہے؟
अम्मा बेफिक्री से बोली कि वो एक्स्ट्रा क्लास लेती है इसलिए देर हो जाती है। अस्पताल में नौजवान लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत महतात हो चुकी थी, इसलिए एक दिन बगैर बताए छुट्टी के वक्त मैं इसके कॉलेज पहुंच गई। मैंने इसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते देखा। वो घर आई तो मैंने इसे थप्पड़ मारा, लेकिन अम्मा के सामने वो साफ मुकर गई और झूठी कसम खा ली। अम्मा ने भी मेरा यकीन नहीं किया और छोटी बहन को प्यार करने लगी। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई। एक हफ्ते बाद की बात है जब अम्मा ने रोते हुए फोन किया और कहा कि कोमल तो सच कह रही थी, ये कमबख्त मीना का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और ये हामला हो गई है। मेरे सर पर तो क़यामत टूट पड़ी। अम्मा मुझसे कह रही थी कि अपने अस्पताल में किसी से कहकर इसकी सफाई करवा दे, अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। मैं यहाँ आने वाली कुंवारी लड़कियों को नफरत से देखती थी और अब मेरी अपनी बहन इस तरह की निकली थी। अम्मा ने इसे मेरे पास भेज दिया। अब मैं क्या करती, मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मेरी बेइज्जती होती। ऐसे में मुझे नर्स फौजिया याद आई जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने रूबी से बात की। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि सबको इल्म हो कि ये मेरी बहन है। वो कहने लगी कि फिर इसी बूढ़ी औरत से राब्ता करते हैं जो ऐसी लड़कियों को यहाँ लाती है, जो ऐसी लड़कियों को यहाँ लाती है। मैंने बेस बदल कर एक दिन इस औरत से बात की, इसे कुछ पैसे दिए और अगले दिन ही वो औरत मेरी बहन को लेकर नर्स फौजिया के पास ले गई। बहन वापस आई तो मैंने पूछा कि काम हो गया। कहने लगी कि नहीं, ये लोग यहाँ काम नहीं करते, बस एक टेस्ट करते हैं और बाकी का काम कहीं और करते हैं। मैंने कहा कि किसी औरत के साथ चली जाना, मैं वहाँ भी मजबूर हो गई थी जिस काम को गलत और गैर कानूनी कहती रही। आज वक्त पड़ा तो वही काम खुद करना पड़ा था। मैंने बहन को इस औरत के साथ इसको भेज दिया। बहन का अबॉर्शन हो गया, वो बाद में घर चली गई। रूबी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी पूरी एक तनख्वाह खर्च हुई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर गई और मीना को देखकर मैं चौंक गई थी। वो पहले से बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। मेरे पूछने पर अम्मा कहने लगी कि जब से यह अस्पताल से आई है इसकी यही हालत है। मैं समझी कि शायद मीना अपने किए पर पछता रही है और खाने पीने पर तवज्जो नहीं दे रही, इसीलिए ये कमजोर हो गई है। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज थी, इसलिए एक दिन रहकर वापस आ गई। वापस आई तो रूबी ने अजीब बात बताई। कहने लगी कि कल एक लड़की आई थी, नर्स फौजिया ने इसका एक माह पहले अबॉर्शन किया था। वो लड़की नर्स फौजिया के गले पड़ गई थी। नर्स फौजिया इसे अपने कमरे में ले गई और कमरा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन वो लड़की न जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। कहने लगी कि तुमने मेरे जिस्म से सब कुछ चुरा लिया है, मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। मैं इसकी बात सुनकर काम की थी। रूबी अफसुर्दगी से कहने लगी कि मैंने इस लड़की को देखा था, बेचारी का बहुत बुरा हाल था, रंगत सर्द हो चुकी थी, आंखों के गिर्द गहरे हल्के और बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। रूबी की बातों पर मैं चौंक गई। ये सारी अलामतें तो मेरी बहन मीना में भी थी। अम्मा ने कहा भी था कि जब से वो अस्पताल से आई है कमजोर होती जा रही है, यही कहती रहती है कि मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है। अगर तो रूबी ठीक कह रही थी तो फिर मीना के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हो गया था। वो बहुत नढाल लग रही थी, ऐसे जैसे इसमें जान ही ना हो। मैंने फौरन अम्मा को फोन करके मीना को अस्पताल लाने का कहा। मैंने रूबी को सारी बात बताई तो वो कहने लगी, हम यहाँ नहीं कहीं और से इसके टेस्ट करवाएंगे। हमने एक और अस्पताल से इसके टेस्ट करवाए तो एक ऐसी हकीकत का इंकशाफ हुआ जिसे सुनकर हम दोनों के कदमों तले से जमीन निकल गई। हम दोनों भागते हुए अपने अस्पताल आए कि नर्स फौजिया इस हद तक गिर जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। मामला अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। रूबी कहने लगी कि आज तक मैं तुम्हें रोकती आई हूँ, मगर अब मामला हाथ से निकल चुका है। नर्स फौजिया और इसके साथियों को रोकना बहुत जरूरी है। हमने सबसे पूछा कि नर्स फौजिया कहाँ है तो पता चला कि वो छुट्टी पर है। अब सिर्फ एक ही सूरत थी कि इस औरत तक पहुंचने की कोशिश करे जो यहाँ पर लड़कियां लेकर आती थी। मेरी बहन मीना ने हमें वो सदर बाजार के पास ही रहती थी। फिर मैंने और रूबी ने अस्पताल के रजिस्टर से इस औरत का मुकम्मल पता भी लिखवा लिया था। मैं और रूबी एक पुलिस अफसर के पास गए और इसे सारी बात बता दी। वो कहने लगा कि सबसे पहले हमें इस औरत तक पहुंचना होगा। जैसे हम इस औरत के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो मालूम हुआ कि इस घर में तो कोई औरत ही रहती नहीं। एक लड़के ने दरवाजा खोला और बताया कि हम सिर्फ बाप और बेटे ही इस घर में रहते हैं, इस लड़के की बहन या माँ नहीं है। हमने इस औरत की तस्वीर जो अस्पताल के सीसीटीवी से निकाली थी वो इस लड़के को दिखाई तो इसने पहचानने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि आप बेशक घर की तलाशी ले ले, मोहल्ले में किसी से भी पूछ ले, हमारे घर में कोई औरत नहीं रहती। हम मायूस होकर वापस पलटने लगे जब इस लड़के की आवाज पर हमारे कदम वही रुके। इसने कहा कि हमारे घर कोई औरत नहीं रहती, मगर मर्द के बेस में एक औरत जरूर रहती है। हम तीनों इसकी बात पर हैरान रह गए थे। वो कहने लगा कि आप अंदर आइए, मैं बताता हूँ। हम तीन भाई हैं, हमारे घर कोई औरत नहीं है।
हमारी माँ का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। हम सारा दिन अपने काम पर होते हैं और अब्बा सारा दिन घर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट करने लगा था कि ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे घर में कोई औरत मौजूद है। और ये बात मैंने ही नहीं बल्कि दूसरे भाइयों ने भी नोट की थी। घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। एक दिन मैं अपने काम पर जाने लगा तो मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैं अब्बा से पूछने के लिए इनके कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थे, मगर इनकी चारपाई पर एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा हुआ था। मैं हैरान हुआ कि यह मामला क्या है, हमारे घर तो कोई औरत नहीं है। मैंने अब्बा से कुछ पूछने का इरादा किया, फिर तर्क कर दिया क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत चुपचाप हो गए थे। हम भाइयों को काम से आते आते रात हो जाती थी। थकन इतनी होती कि खाना खाते ही नींद आ जाती थी। ऐसे में बहुत बार दिल किया कि अब्बा से पूछूं, मगर वक्त ही न मिला और यह सब देखने को मिल रहा था। फिर एक दिन मेरा छोटा भाई असगर कुछ परेशान सा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। कहने लगा कि अब्बा जी का रवैया चंद दिनों से कुछ बदला हुआ सा है। मुझे लगता है कि वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने लाल दुपट्टे वाली बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था और ना ही छोटे भाइयों को बताया था। असगर कहने लगा कि कल आधी रात के वक्त आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब्बा के कमरे से किसी औरत की आवाज आ रही है। मैं इसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैंने इससे कहा कि अरे भाई, अब्बा के कमरे में भला किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? हो सकता है कि वो टीवी देख रहे होंगे। कहने लगा कि क्या हो गया भाई आपको? हमारे घर में कौन सा टीवी है जो अब्बा देखेंगे? मैंने भी बखलाहट में न जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। मैंने कहा कि अरे यार, हो सकता है अब्बा मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे होंगे। अपने भाई को तो मैंने किसी तौर पर मुतमिन कर दिया था, मगर मैं खुद शक में पड़ गया था कि अब्बा क्या करते फिर रही हैं। रात में खाने में से औरत का बाल निकला तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर मजाक में कहने लगा, अब्बा रोज खाने में से लंबे लंबे बाल निकल रही हैं। खैर तो है, कहीं आप चोरी चोरी हमारी सुतेली माँ तो नहीं ले आए जो रोज अपने बाल खुले छोड़कर खाना पकाती हैं। मैंने देखा कि भाई के इस मजाक पर अब्बा का रंग फक हो जाता था। इनकी रंगत बदल गई जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है। इसकी बजाय वो कोई जवाब देते वो जल्दी से किचन से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागा, मगर बाहर तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। हैरत की बात यह थी कि अब्बा भी घर में नजर नहीं आ रहे थे। मैं तो दंग ही रह गया था कि ये क्या मामला है। एक दिन मैं काम पर न गया और घर पर ही था ताकि देख सकूं कि हमारे घर में कौन सी औरत आती है या अंदर छुपी हुई है। कुछ देर बाद अपने कमरे से निकल कर देखा तो अब्बा कहीं भी नजर न आए। मैं बहुत परेशान होकर अंदर कमरे में आ गया। मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे ख्याल आया कि गलती तो मेरी थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात का अब्बा को इल्म था। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में छुप कर रह जाता और अब्बा को इल्म ना होता। तभी मैं राज मालूम कर सकता था। मुझे लगता था कि अब्बा से कोई औरत मिलने आती है। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने ऊंची आवाज से कहा, अब्बा मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, दरवाजे को बंद कर लीजिएगा। गली से बाहर निकलते ही मैंने भाइयों से कहा कि तुम लोग जाओ, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। मैं जल्दी से घर में जाकर अपने कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद अब्बा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि अब्बा के कमरे से कोई औरत निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। मैं जल्दी से चोरी चोरी कमरे से बाहर निकला। जो कुछ मैंने देखा मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि इस औरत के रूम में कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा ही थे। मैं तो दंग ही रह गया था कि ये क्या देख रहा हूँ। मैं अपनी आंखें बार बार चमका रहा था कि शायद मेरी नजर का धोखा हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा ही एक औरत के रूम में थे। उन्होंने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे और सर पर लंबे बालों वाली विग पहन रखी थी और कुछ गुनगुनाते हुए बड़े मजे से सब्जी काट कर खाना बना रहे थे। ये सब देखकर इतने दिनों से जो शाक के कांटे दिल में चुभ रहे थे वो तो दूर हो गए थे कि अब्बा का किसी औरत के साथ चक्कर नहीं था, क्योंकि अब्बा ने खुद औरत का रूप धारा हुआ था। मगर अब सवाल ये पैदा हो गया था कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने इस बारे में छोटे भाइयों को बताना मुनासिब ना समझा, वो बेचारे परेशान हो जाते। मैं अगले दिन भी चोरी चोरी घर गया और अब्बा को मैंने अपनी आंखों से औरत वाला रूप बदलते देखा था। अब तो यकीन करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि अब्बा ने औरतों वाली बड़ी सी चादर लिपटी और एहतियात से गली में झांका। जब देखा कि गली में कोई मौजूद नहीं तो तेजी से वैसे दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। मैं भी फौरन अब्बा के पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने ऐसा हुलिया बदल रखा था कि कोई भी शक नहीं कर सकता था कि औरत के रूप में कोई मर्द जा रहा है। उन्होंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। मैं मुसलसल अब्बा के पीछे था। वो जल्दी से एक बंगले में चले गए। मैं भी अंदर जाने लगा तो गेट पर मौजूद एक चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा कि ओ भाई, मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अभी अभी जो अंदर दाखिल हुआ है। मेरा मतलब है जो औरत अंदर की है वो कौन है? कहने लगा कि वो बेगम साहिबा की खास मुलाजमा है। मैंने कहा
कहा कि मैं इस प्लाज्मा का बेटा हूँ, इसकी कुछ चीजें रह गई थी वही देने आया हूँ। मैं बहाना कर कर अंदर चला गया। अंदर का तो माहौल बदला हुआ था। मैंने देखा कि खास कमरे में एक दो नर्स और मेरे अब्बा एक औरत के रूप में मौजूद थे और वहाँ किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। फिर मैं वहाँ गया, बस मुझे इतना ही मालूम है। अभी बस परसों की बात है, मैं इन दिनों में सोचता रहा हूँ कि मेरे अब्बा ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे समझ आ गया कि पैसों के लालच में अब्बा कोई गलत काम कर रहे हैं। मैंने इस लड़के से बेताबी से पूछा कि क्या तुम मुझे वो जगह बता सकते हो जहाँ तुम्हारे अब्बा इस दिन गए थे, या तुम मुझे वो एड्रेस बता दो। इसने जल्दी से एड्रेस बताया तो मैं रूबी और जल्दी से पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गए। वो घर नर्स फौजिया का था। इत्तेफाक से हम आज वक्त पर पहुँच गए थे क्योंकि अभी ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था। पुलिस ने बर वक्त छापा मार कर इन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज्यादा दचका ये देख कर लगा था कि औरत के बेस में अंकल रईस थे, वही जो रात की शिफ्ट में अस्पताल में नौकरी करते थे और दिन के वक्त औरत का रूप धार कर हफ्ते में एक दो बार ये काम करते थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया था कि इसके जिस्म से एक गुर्दा निकाल लिया गया है और ये काम तभी हुआ था जब इसका अबॉर्शन करने के लिए इसे बेहोश किया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वे लोग इतने घिनौने काम में मलबूस हो सकते हैं। अंकल रईसी औरतों का बेस में थे। मेरे जहन में सारा दिन वो बातें गूंजती रही और वो लड़की मेरे सामने आती रही। वो कितनी कम उम्र थी, अभी से इन चक्रों में पड़ गई थी। इसके माँ बाप को पता चलेगा तो इनको कितना दुख होगा। मगर फिर मैंने सोचा कि वो इसीलिए ही तो बच्चा जाया करवाने आई है ताकि किसी को पता न चले। ऐसी लड़कियों को तो वैसे ही मार देना चाहिए जो माँ बाप की इज्जत कदमों तले रोन देती है। मैंने अगले दिन रूबी से कहा कि नर्स फौजिया जैसे लोगों की वजह से ऐसी लड़कियों का हौसला बढ़ जाता है। जब इन्हें पता होगा कि अबॉर्शन जैसा गैर कानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी तो वो गलत कामों में पड़ने से पहले 100 मरतबा सोचेंगी। हमें नर्स फौजिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। रूबी कहने लगी कि आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मेरा ये मसला था कि मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, मगर गौर भी किया था और अब देख कर लड़कियों को नफरत से देखती थी। और अब मेरी अपनी बहन इस तरह की निकली थी। अम्मा ने इसे मेरे पास भेज दिया। मैं क्या करती? मैं किसी को नहीं बता सकती थी, मेरी बेइज्जती होती। ऐसे में मुझे नर्स फौजिया याद आई जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने रूबी से बात की। मैंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि सबको इल्म हो कि ये मेरी बहन है। वो कहने लगी कि फिर इस बूढ़ी औरत से राब्ता करते हैं जो ऐसी लड़कियों को यहाँ लाती है। मैंने बेस बदल के एक दिन इस औरत से बात की। मैंने इसे कुछ पैसे दिए। अगले दिन ही वो औरत मेरी बहन को लेकर नर्स फौजिया के पास लेगी। बहन वापस आई तो मैंने पूछा कि काम हो गया। कहने लगी कि नहीं, ये लोग यहाँ ये काम नहीं करते, बस एक टेस्ट करते हैं, बाकी का काम कहीं और करते हैं। मैंने कहा कि औरत के साथ चली जाना, मैं वहाँ भी मजबूर हो गई थी जिस काम को गलत और गैर कानूनी कहती रही। आज अफसर के पास गई और इसे सारी बात बता दी। वो कहने लगा कि सबसे पहले हमें इस औरत तक पहुँचना होगा। जैसे हम इस औरत के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक दी तो मालूम हुआ कि इस घर में तो कोई औरत ही नहीं रहती। एक लड़के ने दरवाजा खोला और बताया कि हम सिर्फ बाप बेटे इस घर में रहते हैं। इस लड़की की बहन या माँ नहीं है। हमने इस औरत की तस्वीर जो कि अस्पताल के सीसीटीवी से निकाली थी वो इस लड़की को दिखाई तो इसने पहचानने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि आप बेशक घर की तलाशी ले ले, मोहल्ले में किसी से पूछ ले, हमारे घर कोई औरत नहीं रहती। हम मायूस होकर वापस पलटने लगे जब इस लड़के की आवाज पर हमारे कदम वहीं रुक गए। इसने कहा कि हमारे घर कोई औरत नहीं रहती, मगर मर्द के बेस में एक औरत जरूर रहती है। हम तीनों इस बात पर हैरान रह गए थे। वो कहने लगा कि आप अंदर आइए। लबान कर इन लड़कियों को नर्स फौजिया के पास ले जाता था। असल में अंकल रईस का बहुत से ऐसे लोगों के साथ तल्लक बन गया था जो लड़कियों से गलत काम करवाते थे। जब कोई मसला बनता तो अंकल रईस, जो कि सलमा के नाम से मशहूर हो चुके थे, वो लोग अंकल को पैसे देते और अंकल अस्पताल में जाकर नर्स फौजिया से ये काम करवाता था और फिर इनके बच्चे जाया करके इन लड़कियों के जिस्म से गुर्दे निकाल कर बेच लिया करते थे। ये सब काम अंकल रईस करते थे ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। अंकल रईस का बड़ा बेटा एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, तभी तो इसने हमें यह सब बता दिया। पुलिस ने नर्स फौजिया, अंकल रईस और बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मैं खुश थी कि मेरी वजह से ये सब लोग पकड़े गए। हम दोनों ने अपनी नौकरी को खतरे में डालकर इन खतरनाक लोगों को बेनकाब किया और बाकियों को बचा लिया था। मगर दुख ये था कि मेरी बहन सारी उम्र के लिए अपने एक गुर्दे से महरूम हो गई थी। शायद इसे ये सब अपने किए की सजा मिली थी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की समकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।
पकड़े गए। हम दोनों ने अपनी नौकरी को खतरे में डालकर इन खतरनाक लोगों को बेनकाब किया और बाकियों को बचा लिया था। मगर दुख ये था कि मेरी बहन सारी उम्र के लिए अपने एक गुर्दे से महरूम हो गई थी। शायद इसे ये सब अपने किए की सजा मिली थी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। खुदा।